Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all. I hope that all will be fine. As you know that this is your English class, and in the previous lecture we have completed our unit number 4. That was earthquake awareness and preparedness. Now moving towards our unit number 5, that is democracy. You will have to pronounce that word as democracy. Again listen, democracy. Pronounce with me for at least 3 to 4 times. Democracy, democracy, democracy. From the page number 43. So before starting this topic, I'm going to ask you questions from you that are relating to this topic. And the first question is that what is the name of our Prime Minister? You know very well that in Urdu we call Prime Minister as Wazir-e-Azam. So हमारे वज़ीर आज़म का क्या नाम है? What is the name of our Prime Minister? So obviously all of you know that Imran Khan is the Prime Minister of Pakistan. So we will answer this question as Imran Khan is the name of our Prime Minister. The second question is that is Pakistan a democratic country? Democracy basically means जमहूरियत. और अब बोल रहा है क्या पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है? तो obviously yes, Pakistan is a democratic country. The third question is that after how many years elections are held in Pakistan? यानी कि कितने अरसे बाद पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं? So in Pakistan elections are going to be held after 5 years. Yeah, in Pakistan elections are held after every 5 years. हर 5 साल बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं. So now going to start the chapter reading. Pay full concentration towards me. There was a time, एक वक्त था, when almost every country in the world was ruled by a king or queen. Underline the word almost. The synonym of the word almost is nearly or closely, तकरीबन. There was a time, एक वक्त था, when almost every country in the world, जब दुनिया में तकरीबन हर मुल्क पर was ruled by a king or queen, बादशाह या मलका हुक्मरानी करते थे. एक वक्त था जब दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में बादशाह या मलका हुक्मरानी करते थे. When a king died, जब बादशाह फोत हो जाता, जब बादशाह मर जाता. Basically here it's written when, and you know very well that I have already told you that there are two meanings of when. If the question mark came at the last of the sentence, then it means that when stands for a question, means to say कब. For example, when did you arrive? So तुम कब पहुंचे? Basically here the word when means कब. And the second condition is written in front of you. You can see that when a king died. So here we won't use that कब बादशाह वफात पाई. No, we will say that when a king died, जब बादशाह फोत हो जाता या मर जाता, his son became a king. तो उसका बेटा बादशाह बन जाता. यानी कि अगर एक बादशाह फोत हुआ तो फिर उसका बेटा, वो जिस वक्त बड़ा हुआ या फोत हो गया तो उसका बेटा. तो इस तरह हुकूमतें चलती थी पुराने ज़माने में. He appointed his own ministers and other officers. Underline the word appointed. The synonym of the word appoint is nominate or designate. Z पे आप लोग फोकस करेंगे, ओके? Appoint, nominate or designate, मुकर्रर करना. So when he appointed his own ministers and other officers, वो अपने वज़ीरों या वज़रा और दीगर अफसरों का तकर्रुर ख़ुद करता था या फिर उनको ख़ुद मुंतखब करता था. वो अपने वज़रा और दीगर अफसरों को ख़ुद मुंतखब करता, ख़ुद उनका तकर्रुर करता था, ख़ुद उनको मुकर्रर करता था. कुछ भी आप बोल सकते हैं इन तीनों में से.
He removed them whenever he wished. Underline the word remove. The synonym of the word remove is dismiss or eliminate, यानी के खारिज करना. He removed them whenever he wished. Underline that word wished. The synonym of the word wish is desire or hope, यानी के चाहना या आरजू. सो ही रिमूव्ड देम वेन एवर ही विश्ड. जब कभी वो चाहता तो वो उन्हें खारिज कर देता. जब कभी वो चाहता, जब कभी उसकी ख्वाहिश होती तो वो उन्हें खारिज कर देता. इफ द किंग वॉज गुड एंड वाइज. वाइज बेसिकली मीन्स अक्लमंद, क्लेवर. इफ द किंग वॉज गुड एंड वाइज, अगर बादशाह अच्छा और अक्लमंद होता. द कंट्री मेड प्रोग्रेस. अंडरलाइन द वर्ड प्रोग्रेस. The synonym of the word progress is development or advancement, यानी के तरक्की. So, if the king was good and wise, अगर बादशाह अच्छा और अक्लमंद होता. The country made progress and the people were happy. तो मुल्क तरक्की करता था और अवाम या लोग खुश होते थे. बट ऑल किंग्स वर नॉट गुड एंड वाइज. लेकिन सारे बादशाह, सारे हुक्मरान अच्छे और अक्लमंद नहीं होते थे. इफ द किंग वॉज इनकॉम्पिटेंट ही रूल्ड अनवाइजली. अनवाइजली मीन्स बेसिकली फुलिशली, ठीक है, बेवकूफ़ी से, यानी कि किसी में अकल ना होना तो बेवकूफ़ी है. सो इनकॉम्पिटेंट, अंडरलाइन द वर्ड इनकॉम्पिटेंट. द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनकॉम्पिटेंट इज अनफिट और इनकैपेबल, यानी कि नाअहल. इफ द किंग वॉज इनकॉम्पिटेंट, अगर बादशाह नाअहल होता. ही रूल्ड अनवाइजली, तो वो बेवकूफ़ी से हुकूमत करता था. ही स्पेंट द गवर्नमेंट मनी. यू विल हैव टू प्रोनाउंस दैट वर्ड इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट और उर्दू में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, ठीक है, इंग्लिश में गवर्नमेंट. ही स्पेंट द गवर्नमेंट मनी नॉट फॉर द गुड ऑफ हिज पीपल. वो अपने लोगों की भलाई के लिए सरकारी रकम खर्च नहीं करता था. वो अपने लोगों की भलाई के लिए सरकारी रकम खर्च नहीं करता था. बट फॉर हिज ओन पर्सनल एंजॉयमेंट. अंडरलाइन द वर्ड पर्सनल एंड एंजॉयमेंट. द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पर्सनल इज प्राइवेट, यानी कि ज़ाती. एंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एंजॉयमेंट इज फन और प्लेयर, यानी कि ऐशो अशरत. वो अपने लोगों की भलाई के लिए सरकारी रकम खर्च नहीं करता था, बल्कि अपनी ज़ाती ऐशो अशरत के लिए खर्च करता था. द पीपल हैड नो वॉइस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. अंडरलाइन द वर्ड अफेयर्स. द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अफेयर इज मैटर. अफेयर्स, मैटर्स, मामला या मामलात. सो द पीपल हैड नो वॉइस इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. रियासत के मामलात में लोग दखल अंदाजी नहीं दे सकते थे, या लोगों का कोई दखल नहीं था. रियासत के मामलात में लोगों का कोई दखल नहीं था. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड monarchy. Monarchy. In basically, you know that we have two accents in English. One is the United States and the other is the British. So monarchy and monarchy, but I'll prefer monarchy. So basically, you will have to pronounce that word is monarchy. So this form of the government is called monarchy. हुकूमत की इस किस्म को शहनशाहियत कहा जाता है. This form of government is called monarchy. हुकूमत की इस किस्म को शहनशाहियत कहा जाता है. As time passed, जूं जूं वक्त गुजरता गया. Some wise men started thinking. कुछ अक्लमंद लोगों ने सोचना शुरू किया. Thinking is basically a verb and thinking is the fourth form of the verb. The first form is think, second form is thought, third form is thought, fourth form is thinking, and the fifth form is thinks. So some wise men started thinking. जूं जूं वक्त गुजरता गया तो कुछ अक्लमंद लोगों ने सोच विचार शुरू की, सोचना शुरू किया. They said, one thing I forgot to tell you is that you can see monarchy, शहनशाहियत, and the synonym will be that the form of government in which
सिंगल पर्सन हेल्ड्स सुप्रीम अथॉरिटी इन रूलिंग कंट्री, यानी कि हुकूमत की ऐसी किस्म जिसमें हुकूमत को चलाने के लिए सारा तरीन या सारा निज़ाम सिर्फ एक बंदे के अंडर हो, वो जो बादशाह या मलका होती थी उसके अंडर हो। बेसिकली वी कॉल इट एज शहनशाहियत या मोनार्की। सो दे सेड दैट ऑल मेन आर इक्वल, उन्होंने कहा कि तमाम इंसान बराबर हैं। किन्होंने कहा? सम वाइज मैन, ओके। दे सेड दैट ऑल मेन आर इक्वल, उन्होंने कहा कि तमाम इंसान बराबर हैं। वाई शुड वन मैन हैव द पावर टू रूल ओवर अदर्स, वाई शुड वन मैन हैव द पावर टू रूल ओवर अदर्स, क्यों एक आदमी को दूसरों पर हुकूमत करने का अख्तियार दिया जाए, क्यों एक आदमी को दूसरों पर हुकूमत करने का अख्तियार दिया जाए। द कंट्री बिलोंग्स टू द पीपल हु लिव इन इट, अंडरलाइन द वर्ड बिलोंग्स। The synonym of the word belong is be a part of or suit, मलकियत होना। So, the country belongs to the people who live in it. मुल्क उन लोगों की हुकूमत में मुल्क उन लोगों की मलकियत होता है जो कि इसमें रहते हैं। They pay taxes and fight for it. वो महसूल अदा करते हैं, वो टैक्स अदा करते हैं। एंड फाइट फॉर इट, और इसके लिए लड़ते हैं। टैक्स बेसिकली हमारे पास एक ऐसी मुख्तस रकम होती है जो हर चीज़ पे हुकूमत ने मुख्तस की हुई होती है, मुतय्यन की हुई होती है। जिससे आप लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ वगैरह ख़रीदते हैं तो उस पर आप लोगों ने नोट करना है कि एक हमारे पास प्राइस लिखी हुई होती है जो उन्होंने पहले तो मैन्युफैक्चर हो गया, एक्सपायरी डेट वगैरह इन चीज़ों की लिखी, और फिर आगे एक रकम लिख के आगे उन्होंने लिखा होता है प्लस टैक्स, और फिर उसमें उन्होंने खास टैक्स मुतय्यन किया होता है। हर चीज़ जो हम लोग क्या करते हैं, ख़रीदते हैं, उस पर हम लोग टैक्स अदा करते हैं। वो टैक्स फिर हुकूमत के खाते में जाता है और फिर उससे हमारा जो कंट्री है वो चलता है। सो इसकी सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल आपको दिए जाता हूँ कि हम लोग अगर मोबाइल में रिचार्ज करते हैं 100 का, तो आप लोग नोट करेंगे 88 रुपीज़ आते हैं, ठीक है। तो उस पे बाकी जो पैसे हैं वो हम लोग क्या करते हैं, टैक्स अदा करते हैं। सो यही कह रहा है कि दे पे टैक्सेस एंड फाइट फॉर इट, वो टैक्स या महसूल अदा करते हैं और इसके लिए लड़ते हैं। ऑल ऑफ देम हैव इक्वल ड्यूटीज़ एंड इक्वल राइट्स, अंडरलाइन द वर्ड ड्यूटीज़। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ड्यूटी इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि फ़र्ज़। सो ऑल ऑफ देम हैव इक्वल ड्यूटीज़ एंड इक्वल राइट्स, उन सब के बराबर या मसावी फ़राइज़ और हकूक़ हैं, या उन सब के फ़राइज़ और हकूक़ यकसा हैं, मसावी हैं, एक जैसे हैं, बराबर हैं। दे शुड हैव इक्वल राइट्स टू रूल द कंट्री, दे शुड हैव इक्वल राइट्स टू रूल द कंट्री, हुकूमत मुल्क पर हुक्मरानी करने के लिए उनके पास यकसा हकूक़ हैं, ठीक है। मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क पर हुक्मरानी के लिए उनके पास यकसा क्या हैं, हकूक़ हैं। रूल्ड बेसिकली मीन्स हुक्मरानी। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द स्टार्ट ऑफ द लेसन, रूल्ड हुक्मरानी करना। सो हेयर रूल हुक्मरानी। बट हाउ कैन ऑल मैन रूल, लेकिन तमाम लोग कैसे हुकूमत कर सकते हैं। बट हाउ कैन ऑल पीपल रूल, लेकिन तमाम लोग, सब लोग कैसे हुकूमत कर सकते हैं। अंडरलाइन द वर्ड रूल। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रूल इज़ गवर्न और कंट्रोल, यानी कि हुकूमत। लेकिन सब लोग कैसे हुकूमत कर सकते हैं। दे कैन डू सो बाय इलेक्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स फॉर दिस पर्पज। सो अंडरलाइन द वर्ड इलेक्टिंग, सर्टेन एंड पर्पज। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड elect is choose or appoint, मुंतखब करना, नामजद करना। certain, particular, specific, खास। and purpose, goal और aim, यानी कि मकसद। so they can do so by electing a certain number of persons among themselves for this purpose, वो इस मकसद के लिए अपने आप में से कुछ खास लोगों को मुंतखब करके ऐसा कर सकते हैं। they can do so, ऐसा कर सकते हैं by electing a certain number of persons from among themselves, अपने आप में से कुछ खास लोगों को मुंतखब करके for this purpose, इस मकसद के लिए। बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा, वो इस मकसद के लिए अपने आप में से कुछ खास लोगों को मुंतखब करके ऐसा कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इलेक्शन, इसको इलेक्शन कहा जाता है। सो यू नो वेरी वेल दैट व्हाट डज द वर्ड इलेक्शन मीन्स एंड व्हाट हैपन्स इन द इलेक्शन।
what the people do. So I think that's enough for today. Now I am moving towards our today's main points, whom I have written in my own wording. So pay full concentration towards me and listen to me carefully, because these points are taken from your today's lecture, written in simple language. The first one was that there was a time when every country was ruled by a king or queen. They're talking about the past. The second point, I am not translating it for you in Urdu because I have already translated it in the chapter for you. So now I'm just reading it. These are the few main points which you have to keep in your mind. There was a time when every country was ruled by a king or queen. The second point is when he died, his son became a king. The third point is he appointed his own ministers. He basically means king or queen. The fourth point is people had no voice in the affairs of the state. The fifth point is this form of the government is called monarchy. This form of the government is called monarchy. Sixth point is some wise men thought that all men are equal. The seventh point is all of them pay taxes and have equal rights and duties. Eighth point is in monarchy, all powers of the government is in the hands of the king. And last but not the least point is that in election, the people elect a certain number of persons among themselves as their representatives. So these were the few main points of the today's lecture. Now moving towards are the words, synonyms and their meanings, that how you will pronounce them. The first word was almost, nearly, closely, takriban. Appoint, nominate, designate, मुकर्रर करना. Remove, dismiss, eliminate, खारिज करना. Wish, desire, hope, चाहना या आरज़ू. Progress, development, advancement, तरक्की. Incompetent, unfit, incapable, नाअहल. Personal, private, ज़ाती. Enjoyment, fun, pleasure, ऐशो इशरत. Affair, matter, मामला. Belong, be a part of or suit, मलकियत होना. Duty, responsibility, फ़र्ज़. Rule, govern, control, हुकूमत. Elect, choose, appoint, मुंतखब करना. Certain, particular, specific, ख़ास. Purpose, goal, aim, मकसद. So these were the few difficult words and their synonyms. One thing I'm going to tell you simply in Urdu ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने एक बात नोट की है, ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि लेक्चर देखते हैं, यानी कि व्यू हो जाता है, लेकिन वो होमवर्क नहीं करते हैं. काइंडली आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाए, आप लोग ये होमवर्क ज़रूर किया करें. रफ़ कापीज़ पे साफ़ सुथरे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वर्ड्स मीनिंग दिए तो साफ़ सुथरे उन वर्ड्स मीनिंग को लिख कर उसके बाद उसकी पिक्चर लें. अब आपने ऐसा करना है कि गूगल क्लासरूम में आपने ये होमवर्क शेयर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. और अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ रिटर्न में होमवर्क में पिक्चर नहीं लेते हैं, जस्ट वैसे रिटर्न कर लेते हैं. अब उनका कोई होमवर्क ही नहीं आया हुआ होता तो चेक क्या किया जाए. लिहाजा होमवर्क आप लोगों ने ऐसा करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे बने हुए हैं क्लासेस के 6, 7, 8 या वट एवर जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आपने पिक्चर्स अपना होमवर्क साफ़ सुथरा लिख के वहाँ से कैप्चर करके उसको उस ग्रुप में शेयर करना है. और जो बच्चे होमवर्क नहीं करेंगे, ये जो आगे हमारे पास आगे ये डिटेंशन एग्ज़ाम्स या चलें वो तो बड़ी क्लासेस में है, लेकिन ये आप लोगों की क्लास में जो मंथली टेस्ट वगैरह का रिकॉर्ड होता है, ये जो है इस बेस पे आप लोगों के मार्क्स वगैरह लगेंगे. लिहाजा अगर कोई बच्चा काम लिखता है और सबमिट नहीं करता है तो उसके मार्क्स पे, उसकी पोजीशन पे, ग्रेड पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा. सो काइंडली आप लोगों ने आइंदा के बाद डेली हर स्टूडेंट ने, इतना ज़्यादा इंग्लिश का काम नहीं होता है, सिनोनिम्स, वर्ड्स मीनिंग्स या जो भी होमवर्क दूँ वो आपने हर सब्जेक्ट का, या अपने इंग्लिश की मैं बात करूँ तो लिख कर साफ़ सुथरा उस पर क्लिक करके पिक्चर क्लियर लेके उसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में. और लास्ट में अगर आपको इस सारे चैप्टर में, आज के टॉपिक में या प्रीवियस जो हमने पढ़े हैं, इनमें से किसी में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे नीचे जो कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर पूछ सकते हैं. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.